یہ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس دھرتی پر بھیجا تھا، اس کے کئی سال بعد کی بات ہے۔ اب لوگ بستیوں اور گاؤوں میں بسنے لگے تھے، مگر انہوں نے اپنے باپ دادا آدم کے دین سے رخ موڑ لیا تھا۔ وہ لالچی اور خود غرض بن گئے تھے۔ امیر اور طاقتور لوگ کمزوروں پر ظلم کرتے تھے۔ وہ دھوکہ دیتے اور مال چھینتے تھے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو اللہ نے ان پر ایک نبی بھیجا جو انہیں سچے دین کی طرف بلاتے تھے۔ ان کا نام تھا نوح علیہ السلام۔ انہوں نے اپنی قوم کو صرف اللہ کی عبادت کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ رحم اور انصاف کرنے کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو بلایا، مگر انہوں نے بات سننے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا انہیں دھمکیاں دینے لگے۔ کئی سالوں تک تبلیغ کرنے کے بعد نوح علیہ السلام نے اللہ سے مدد کی دعا کی۔ اللہ نے نوح کو بتایا کہ وہ کافروں کو ایک بڑی طوفانی باڑھ سے ہلاک کر دے گا، اور نوح کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا تاکہ وہ ایمان والوں کو اس بلا سے بچا سکے۔ نوح نے ایمان والوں کے ساتھ مل کر کشتی بنانی شروع کی۔ کافر ان کا مذاق اڑاتے اور ان کا طعنہ کرتے، مگر ایمان والے اللہ کے حکم کی پیروی کرتے رہے۔ جب کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ نے حکم دیا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں سوار کر لیا جائے۔ تمام جانور اللہ کے حکم کے تابعدار تھے اور جلد ہی کشتی ہر طرح کے جانوروں سے بھر گئی۔ پھر آسمان سے بارش شروع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کشتی میں سوار ہونے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا لے گا، لیکن وہ ڈوب گیا۔ کئی دنوں تک موسلا دھار بارش ہوتی رہی۔ پورا گاؤں پانی میں ڈوب گیا۔ بہت جلد پورا علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ صرف وہ لوگ جو کشتی میں تھے محفوظ تھے۔ کشتی پانی پر تیرتی رہی۔ پھر بارش رک گئی، پانی اتر گیا اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ جانور خوشی سے باہر آ گئے، ایمان والے بھی باہر آئے اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کی۔ تو بچوں، اس داستان سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے حکموں کا تابعدار ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے وعدے حق اور سچے ہیں۔ ہمیں ان کا مذاق اڑانے والوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں انہیں اللہ کی طرف بلانا چاہیے، کیونکہ آخر میں کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے جو بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے۔ وہ مسیح تھے اور اللہ نے انہیں معجزات سے نوازا تھا۔ ان کے معجزات ان کے پیدا ہونے سے ہی شروع ہو گئے۔ ان کا جنم بغیر والد کے ماں مریم سے ہوا۔ جب لوگوں نے مریم پر بدکاری کا الزام لگایا تو عیسیٰ نے، جو اس وقت صرف نوجات تھے، ماں کی گود سے بول کر اپنی ماں کا حمایت کی اور اعلان کیا کہ وہ اللہ کے رسول کے طور پر بھیجے گئے ہیں۔ آس پاس کے لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوئے، انہوں نے عوام کو اللہ کی طرف بلانا شروع کیا۔ ان کی زندگی معجزات سے بھری تھی۔ ایک بار انہوں نے مٹی سے چڑیا بنائی اور اس میں دم پھونکا، جس سے وہ اللہ کی اجازت سے حقیقی چڑیا بن گئی۔ عیسیٰ مسیح کو اللہ سے وحی ملی، انہیں شریعت اور حکمت سکھائی گئی اور انہیں ایک کتاب انجیل عطا کی گئی۔ انہوں نے اپنی دعوت کو ان لوگوں پر مرکوز کیا جو بنی اسرائیل میں اللہ سے سب سے دور تھے، یعنی اسرائیل کے خاندان کے گمراہ لوگ۔ انہوں نے جیمز اور تھڈیس کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے ان کا پیغام قبول کر لیا۔ ایک خاتون تھی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جنات کے اثر میں تھی۔ عیسیٰ نے اسے شیطان سے آزاد کیا اور وہ صحیح راستے پر لوٹ آئی۔ پھر وہ ساحل پر گئے اور ماہی گیروں کو، جو گناہوں کی زندگی جی رہے تھے، نصیحت کی۔ یہاں عیسیٰ نے ایک معجزہ کیا۔ ایک ماہی گیر جس کا نام پیٹر تھا اور جو قرض میں ڈوبا ہوا تھا، اسے عیسیٰ نے دریا میں جال ڈالنے کو کہا۔ جال مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلا۔ پھر عیسیٰ نے اسے اور وہاں موجود دوسروں کو اپنے ساتھ چلنے کو کہا اور انہوں نے ایسا کیا۔ ایک شخص عیسیٰ کے پاس آیا جو کوڑ سے متاثر تھا۔
عیسیٰ نے اللہ کی اجازت سے اسے شفا دی۔ پھر جب وہ ایک جماعت کو نصیحت کر رہے تھے، ایک شخص کو لایا گیا جو چل نہیں سکتا تھا۔ عیسیٰ نے اللہ کی اجازت سے اسے شفا دی اور وہ چلنے لگا۔ جیسے جیسے معجزات کی خبر پھیلی، یہودی فریسی ان سے حسد کرنے لگے اور ان کے خلاف بولنے لگے۔ ایک شخص تھا جس کا نام میتھیو تھا، جو اپنے لوگوں کو چھوڑ کر رومن قبضے داروں کے لیے ٹیکس جمع کرنے والا بن گیا تھا۔ ایک بار جب وہ ٹیکس وصول رہا تھا، عیسیٰ نے اس سے رابطہ کیا اور اسے اللہ کی طرف بلایا۔ عیسیٰ کے معجزات اور ان کے پیغام کی صاف گوئی کو جان کر اس شخص نے اپنا کام چھوڑ دیا اور عیسیٰ کی پیروی کرنے لگا۔ جب عیسیٰ اپنے نئے ماننے والوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، یہودی ربی وہاں سے گزرے اور ان پر گنہگاروں کے ساتھ بیٹھنے کا الزام لگایا۔ عیسیٰ نے واضح کیا کہ جیسے مریض کو حکیم کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح گنہگاروں کو سب سے زیادہ اللہ کی طرف بلائے جانے کی ضرورت ہے۔ مگر یہودی ربی متکبر ہو گئے اور ان کے بات پر یقین نہیں کیا۔ عیسیٰ نے پھر ملک بھر میں سفر کیا، بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے، معجزات کرتے اور لوگوں کو شفا دیتے۔ انہوں نے ایک اور شخص کو اللہ کی اجازت سے شفا دی جو چل نہیں سکتا تھا، اور وہ چلنے لگا۔ وہ گیا اور اس کرشمے کے بارے میں اپنے بھائی کو بتایا، جو زیلٹ نام کے ایک جنگجو تحریک کا حصہ تھا، جس کا مقصد رومی قابضوں کو ہٹانا تھا۔ اپنے بھائی کی بات سن کر اس نے اس تحریک سے کنارہ کر لیا اور عیسیٰ مسیح کی پیروی کرنے لگا۔ پھر عیسیٰ کو ایک شخص ملا جو پیدائشی نابینا تھا۔ عیسیٰ نے اللہ کی اجازت سے اسے شفا دی اور وہ دیکھنے لگا، مگر یہودی ربی اور زیادہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے عیسیٰ پر جھوٹا نبی ہونے اور مسیح ہونے کا دعویٰ کرنے کے لیے الزام کفر لگایا۔ انہوں نے ایک معجزے کی مانگ کی، حالانکہ وہ پہلے کئی معجزات دیکھ چکے تھے۔ ان کے بے اعتقادی کو دیکھ کر عیسیٰ نے انکار کیا اور پوچھا کہ اللہ کے راستے پر ان کے معاون کون ہوں گے۔ ان کے حواریوں نے کہا کہ انہوں نے یقین کیا اور وہ ان کے معاون ہوں گے۔ پھر وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ ایک پہاڑ پر گئے اور وہاں جمع ہوئے کئی لوگوں کو نصیحت کی۔ انہوں نے انہیں اللہ کا خوف رکھنے اور احکام کی پیروی کرنے کو کہا۔ انہوں نے تنبیہ کی کہ ان کے بعد غلط لوگ آئیں گے جو انہیں رب کہیں گے اور ان کے نام پر معجزات کریں گے۔ انہوں نے آخری نبی احمد کے آنے کی پیشن گوئی بھی کی، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا نام تھا۔ پھر انہوں نے وہاں جمع سینکڑوں لوگوں کو صرف چند روٹیوں اور مچھلیوں سے کھانا کھلایا۔ وہ سفر کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے اور معجزات کرتے رہے۔ کچھ لوگوں نے ان کا پیغام قبول کیا، جبکہ کچھ نے رد کر دیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ سب سے اہم حکم کون سا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کریں، بنا کسی کو اس کا شریک بنائے۔ عیسیٰ کو خبر ملی کہ ان کا بچپن کا دوست لیزرس بہت بیمار ہے۔ جب تک وہ وہاں پہنچے، لیزرس 4 دن پہلے ہی انتقال کر چکا تھا۔ جب اس کے اقربا رو رہے تھے، عیسیٰ نے انہیں تسلی دی کہ اگر ان کا ایمان ہے تو وہ ابھی بھی اللہ کا جلال دیکھیں گے۔ انہوں نے انہیں اس قبر پر لے جانے کو کہا جہاں لیزرس کا جسم رکھا گیا تھا۔ قبر پر پہنچ کر عیسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ لیزرس کو زندہ کر دیں۔ پھر انہوں نے لیزرس کو باہر آنے کا حکم دیا۔ اللہ کی اجازت سے لیزرس زندہ ہو اٹھا اور زندہ باہر آیا۔ عیسیٰ کے لیزرس کو زندہ کرنے کی خبر چاروں طرف پھیل گئی۔ جیسے جیسے زیادہ لوگ ان پر یقین کرنے لگے، ان کے اپنے لوگوں، خاص طور پر ربیوں اور فریسیوں میں حسد اور بڑھ گیا۔ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنے اور ختم کرنے کی سازش شروع کر دی۔ جب عیسیٰ یروشلم کے مندر میں گئے اور دیکھا کہ کچھ لوگ مندر کو تجارت اور سود خوری کا اڈا بنا رہے تھے، تو انہوں نے ان کے خلاف بولا اور انہیں مندر سے نکال دیا۔ اس سے یہودی رہنما اور زیادہ غصے میں آ گئے، کیونکہ وہ خود اس تجارت سے نفع کماتے تھے۔ جیسے جیسے دباؤ بڑھتا گیا، عیسیٰ کے حواریوں کے ایمان کی آزمائش ہوئی۔ اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے عیسیٰ سے ایک معجزے کی درخواست کی۔ انہوں نے ان سے کہا کہ اللہ سے آسمانی کھانے کی میز منگوائیں۔ عیسیٰ نے پوچھا کہ کیا ان کا ایمان نہیں ہے؟
उन्होंने जवाब दिया कि उनका ईमान है, मगर वे अपने दिलों को इत्मीनान देने के लिए तस्दीक चाहते हैं। ईसा ने फिर अल्लाह से दुआ की कि आसमानी खाने से भरी मेज़ भेजी जाए। अल्लाह ने ईसा की दुआ कबूल की, मगर तनबिया की कि जो कोई इस मोजज़े के बाद भी मुकर जाएगा उसे दोहरी सज़ा दी जाएगी। मगर इस मोजिज़े को देखने के बाद भी उनके एक हवारी जिसका नाम जुडास था, उसने ईसा के साथ गद्दारी की और यहूदी रब्बियों के साथ मिलकर कुछ पैसे के बदले ईसा को गिरफ्तार करवाने में मदद करने के लिए राजी हो गया। यहूदी रब्बियों ने रोमनों के साथ मिलकर ईसा को गिरफ्तार करने और सलीब पर चढ़ाने की साजिश रची। उन्होंने उन पर कई झूठे इल्जामात लगाए, मगर ईसा ने इन तमाम झूठे इल्जामात को रद्द कर दिया। ईसा ने अल्लाह से दुआ की कि उनकी हिफाजत करें। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और उन्हें जिंदा ऊपर उठा लिया। ताहम अवाम पर यह जाहिर किया गया कि वो हजरत ईसा को सलीब पर चढ़ा रहे हैं, जबकि दरअसल वो इस मुहिम में नाकाम रहे। बयान किया जाता है कि उन्होंने हकीकत में गद्दार को सलीब पर चढ़ा दिया था, जबकि ईसा आसमानों में महफूज थे। ईसा के बाद लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करने लगे। कुछ ने उनके तालीमात की पैरवी की, मगर कईयों ने उनकी तारीफ में गुलू किया और उन्हें खुदा बना दिया और सलीब पर चढ़ाने के इर्द गिर्द एक मजहब बना लिया। ईसा अब आखिरी ज़माने में ज़मीन पर वापस आएंगे, जैसा कि उन्हें जिंदा ऊपर उठाया गया था। वे दज्जाल को कत्ल करेंगे, सलीब को तोड़ेंगे और सुअरों को मारेंगे, और जो लोग उनके मुरीद होने का दावा करते हैं उन्हें इस्लाम के पैगाम की हकीकत साबित करेंगे। वे याजूज और माजूज से लोगों को बचाएंगे, अल्लाह के हुक्म के जरिए उनको एक पहाड़ पर ले जाकर। फिर वे कई सालों तक इंसाफ के साथ हुकूमत करेंगे, जिसमें वे शादी करेंगे और कुरान के मुताबिक अल्लाह को मखसूस जिंदगी गुजारेंगे। फिर उनकी तबई मौत होगी। क़यामत के दिन वे उन लोगों के खिलाफ गवाही देंगे जिन्होंने उनके मजहब को बदल दिया। यही थे हकीकी ईसा, अल्लाह के रसूल, जिन पर सलाम हो। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को नबुवत अता की। हजरत दाऊद अपनी कौम बनी इसराइल के बादशाह भी थे, इसलिए हजरत सुलेमान को विरासत में बादशाहत भी मिली। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को बहुत बड़ी सल्तनत अता की थी, और आप इंसानों के ही नहीं बल्कि जिन्नात और तमाम जानवरों के भी बादशाह थे। आपको जानवरों, परिंदों और जमीन पर चलने वाले तमाम जानवरों, कीड़े मकोड़ों की भी जबानों बोलियों का इल्म अता किया गया था। इसके अलावा हवा भी आपके कंट्रोल में की गई। आप जब चाहते हवा आपके तख्त को उड़ाती, और जितना फासला कोई तेज रफ्तार घुड़सवार एक महीने में तय करता, आप उसके बराबर सफर चंद लम्हों में तय कर लेते। एक दिन हजरत सुलेमान अपने अजीम दरबार में बैठे थे। अपने दरबार पर गहरी नजर डाली और हैरत से पूछा, आज दरबार में हुदहुद नजर नहीं आ रहा। इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या किसी को उसके बारे में कोई खबर है? जवाब में खामोशी रही। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से से फरमाया, सब जानते हैं कि मुझे ऐसी गैर जिम्मेदारी पसंद नहीं। फिर हुदहुद ने ऐसा क्यों किया? अगर उसकी गैर हाजिरी की कोई माकूल वजह न हुई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। हुदहुद हजरत सुलेमान और उनके लश्कर के सफर में पानी तलाश करने का काम किया करता था, और जब भी पानी की जरूरत होती तो वो बता देता कि फलां जगह पर पानी मौजूद है। इस तरह हुदहुद की बात हमेशा सच साबित होती, और जब पानी मिल जाता तो पूरा लश्कर उसे इस्तेमाल करता। हजरत सुलेमान की बात अभी खत्म ही हुई थी कि हुदहुद दरबार में हाजिर हो गया। वो बड़ा थका हुआ नजर आ रहा था। हजरत सुलेमान ने सख्त लहजे में पूछा, कहाँ रह गए थे? जानते नहीं कि गैर जिम्मेदारी मुझे सख्त न पसंद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लहजे ने हुदहुद को खौफ ज़दा कर दिया। फिर घबराए हुए अंदाज में बोला, बेशक मुझसे गलती हुई है जिसकी मैं माफी चाहता हूँ, मगर आपके लिए ऐसी खबर लाया हूँ जो आपने पहले कभी न सुनी होगी, और मुझे देर भी इसी वजह से हुई है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को गौर से देखा, फिर फरमाया, ठीक है, पहले वो खबर सुनाओ। फिर हुदहुद बोला, आली जनाब, यमन के इलाके सबा पर एक रानी की हुकूमत है जिसका नाम बिल्कीस है।
अल्लाह ताला ने उसे अपनी हर नेमत से नवाज रखा है। उसका महल बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा है और उसका शाही तख्त बेमिसाल है, मगर अफसोस कि रानी और उसकी कौम को शैतान ने गुमराह कर रखा है और वो लोग अल्लाह की इबादत नहीं बल्कि सूरज की पूजा करते हैं। बहुत खूब। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तेरे झूठ और सच का इम्तिहान अभी हो जाएगा। अगर तू सच बोल रहा है तो मैं तुझे रानी के नाम एक खत देता हूं और तू रानी तक ये खत पहुंचा दे। हुदहुद खत लेकर सबा पहुंचा और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खत रानी बिल्कीस की गोद में गिराकर वापस आ गया। रानी ने खत पढ़ा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रानी को लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तुम्हें सरकशी और सरबुलंदी का इजहार नहीं करना चाहिए। तुम्हें अल्लाह ताला की फरमाबरदार यानी मुसलमान बनकर मेरे पास आओ। सबा की रानी बिल्कीस ने खत पढ़कर अपने दरबारियों से मशवरा किया, फिर अपने कुछ लोगों को कीमती तोहफों के साथ हजरत सुलेमान की खिदमत में रवाना किया, मगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तोहफे कबूल न किए और रानी बिल्कीस के लोगों को ये पैगाम भेजकर वापस लौटा दिया कि मुझे तुम्हारे तोहफे नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने और सिर्फ उसकी इबादत करने की दावत दी थी। उसे कबूल करो, और अगर तुमने इसको कबूल न किया तो अपने अजीम लश्कर के साथ तुम्हारे मुल्क सबा पहुंचूंगा और तब तुम अपना बचाव न कर सकोगी। जब सबा की रानी बिल्कीस के पास उसके लोग पहुंचे तो उन्होंने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पैगाम पेश किया और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शान शौकत और अजमत भी बयान की, और उन लोगों ने रानी को यह भी बताया कि हजरत सुलेमान इंसानों ही नहीं जिन्हों और जानवरों के भी बादशाह हैं। सबा की रानी ये सब जानकार हैरत और ताज्जुब में पड़ गई। वो समझ गई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से लड़ना कोई समझदारी नहीं बल्कि नासमझी होगी, लिहाजा उसने फैसला कर लिया वो हजरत सुलेमान के सामने पेश होगी। कुछ दिनों के बाद सबा की रानी बिल्कीस अपने लोगों के साथ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुई। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में जैसा सुना था वैसा ही पाया। हजरत सुलेमान ने उससे एक बार फिर अल्लाह वहदहू ला शरीक पर ईमान लाने की दावत दी, जो उसने खुशी खुशी कबूल कर ली और अल्लाह पर ईमान ले आई। उसने कहा, ए अल्लाह, मैं अब तक गैर अल्लाह की पूजा करके अपने ऊपर बड़ा जुल्म करती रही, मगर अब हजरत सुलेमान की दावत पर इकरार करती हूँ कि सिर्फ अल्लाह की ही जात है जो इबादत के लायक है और वही तमाम कायनात का पैदा करने वाला मालिक और परवरदिगार है। यही वो सबक है जो दुनिया का अगर हर इंसान समझ ले और इस पर राजी हो जाए तो सब लोग इस दुनिया में भी और वो जिंदगी जो अल्लाह के पास है, इन दोनों में कामयाब होकर रहेगा। अल्लाह की नाराजगी से तो बचेगा बल्कि अल्लाह को भी राजी कर लेगा। ये ही असल कामयाबी है तमाम इंसानों के लिए। फिरौन के हाथों दुनिया की सबसे बदतरीन जुल्म सहने के बाद बनी इसराइल आखिरकार आजाद हो गए। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम, जिनको मोसेस के नाम से भी जाना जाता है, अपना रसूल बना करके फिरौन के दरबार में भेजा था। अल्लाह की तरफ से मूसा के हाथों 9 बड़े निशान देखने के बाद उसके पास कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन बनी इसराइलों के जाने के थोड़े ही वक्त बाद उसकी तकब्बुर ने उस पर गलबा पा लिया और उसने फौज के साथ उनका पीछा करने का फैसला किया। उसने उन्हें समुंदर के करीब आराम करते हुए पाया। बनी इसराइल एक तरफ फिरौन की फौज और दूसरी तरफ समुंदर के बीच फंसकर महसूस किया कि उनकी किस्मत पर मोहर लग गई है। मौत यकीनी थी, लेकिन जब उन्होंने सब उम्मीद खो दी तब उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मोजज़ा देखा। अल्लाह के हुक्म पर मूसा ने समुंदर पर अपनी लाठी मारी और समुंदर का पानी 2 हिस्सों में बट गया, जिससे उन्हें समुंदर के बीच से गुजरने का रास्ता मिला। फिरौन और उसकी फौज ने उसी रास्ते से उनका पीछा किया, लेकिन जब वे बीच में थे तो पानी वापस आ गया और फिरौन और उसकी फौज डूब गई। इस तरह जुल्म का दौर खत्म हो गया। अल्लाह ने मूसा को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को उस जमीन पर ले जाएं जो मोमिनों से वादा की गई है। लेकिन सफर के दौरान ही
बगावत और नाशुक्री के निशान नजर आने लगे। जब उन्होंने कुछ लोगों को मूर्तियों की इबादत करते देखा तो उन्होंने मूसा से कहा कि उनके लिए भी कुछ मूर्तियां बनाएं जिनकी वे इबादत करें। मूसा ने उन्हें समझाया कि अल्लाह एक है और उसकी कोई तस्वीर या मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, और जो मूर्तियों की इबादत करता है वो तबाही के लिए मुकर्रर है। सफर के दौरान अल्लाह ने रहमत से उन्हें मन और सलवा अता किया, लेकिन शुक्रगुजार होने की बजाय उन्होंने खाने में तब्दीली की मांग की। जब मूसा पहाड़ पर वही लेने गए तो बनी इसराइल में से बदकारों ने सोने का बछड़ा बनाया और उसकी इबादत शुरू कर दी। मूसा गुस्से में वापस आए और मूर्ति को तोड़ दिया। गुनहगारों को सजा दी गई। जब वे वादा की गई जमीन के करीब पहुंचे तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि उस जमीन पर कब्जा करने वाले बदकार लोगों से लड़ें, लेकिन उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। सजा के तौर पर वादा की गई जमीन उनसे 40 साल के लिए दूर रखी गई। ये इस बात की निशानी थी कि इस जमीन पर हक अल्लाह की इताअत से जुड़ा हुआ है। इस दौर में वे जमीन में भटकते रहे और बस नहीं सके। जैसे जैसे नस्ल गुजरी और अगली नस्ल आई, वो योशुआ की क़यादत में लड़ने पर राजी हो गए। आखिरकार जीत हासिल की और वादा की गई जमीन में बस गए। अल्लाह ने उन पर बहुत सी नेमतें अता की। उसने उनके बीच बहुत से पैगंबर भेजे। हर नस्ल में एक पैगंबर उन्हें हिदायत देने वाला था। उन्होंने पैगंबर दाऊद और पैगंबर सुलेमान के बड़े सल्तनतें भी देखीं। उनमें से कुछ ईमान पर कायम रहे और पैगंबरों की इताअत की, लेकिन ज्यादातर बगावत और नाफरमानी पर उतर आए। उन्होंने हर किस्म के गुनाह किए। कानून तोड़ने से लेकर धार्मिक रहनुमाओं का अपने फायदे के लिए किताबें को बदलना, यहाँ तक कि वो नबियों का कत्ल करने पर भी आ गए। बगावत अपने चरम पर पहुंच गई जब उनके बीच दो पैगंबर मौजूद थे, यहया और ईसा मसीह। उन्होंने यहया को कत्ल कर दिया और ईसा को पैगंबर और मसीहा के तौर पर रद्द करते हुए रोमियों से उन्हें कत्ल करवाने की पूरी कोशिश की। कभी जो मजलूम थे वो अब जालिम बन गए थे। पैगंबरों को रद्द करने और उनके जुल्म की वजह से अल्लाह ने उन्हें सजा दी। रोमियों ने उनका मंदिर तबाह कर दिया और उन्हें वादा की गई जमीन से निकाल दिया। उन्होंने ये दुनिया खो दी। जहां तक आखिरत की बात है, उन्होंने उसे अपनी बगावत से बहुत पहले खो दिया था। अल्लाह ने अरबों में से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा और बहुत जल्द वादा की गई जमीन फिर मोमिनों के हाथ में आ गई, जो अल्लाह के वादे के मुताबिक अब जमीन के असल हकदार थे। बनी इसराइल दूसरी तरफ जमीन में तितर बितर रहते रहे। एक तरफ मुसलमानों के तहत रहने वाले न्याय और मोहब्बत से फायदा उठाते रहे, दूसरी तरफ ईसाई दुनिया में उन्हें जुल्म का सामना करना पड़ा। जुल्म फिर चरम पर पहुंचा जब जर्मनी में हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल किया। यहूदियों ने अपने बाप दादा से वादा की गई जमीन पर वापस जाने का फैसला किया, भूलकर कि ये मोमिनों और इताअत करने वालों के लिए वादा की गई थी, और इस तरह ज़ायोनी नजरिए को हवा मिली। ये वो नजरिया था जिसने वादा की गई जमीन पर हक को एक नस्ली मुद्दा बना दिया था। ब्रिटिश की मदद से वे वादा की गई जमीन पर वापस आने लगे। मकामी फिलिस्तीनी आबादी ने यहूदी पनाहगुज़ीनों का इस्तकबाल किया, लेकिन जल्द ही बगावत फिर शुरू हो गई। पश्चिमी ताकतों की मदद से यहूदी रहनुमाओं ने जमीन पर कब्जा करना शुरू कर दिया और मुसलमानों पर जुल्म करने लगे। उन्होंने मासूम मर्दों, औरतों और बच्चों को कत्ल किया, आबादी को उनके घरों से निकालकर कब्जा कर लिया। अपनी तारीख से कुछ नहीं सीखते हुए मजलूम फिर जालिम बन गए हैं। इस जुल्म में जबकि वे कुछ मुवक्कती दुनियावी फायदा हासिल करते नजर आते हैं, वे आखिरत को खो रहे हैं और बहुत जल्द ये दुनिया भी खो देंगे। सुल्तान मोहम्मद फातह उस्मानी सल्तनत के मशहूर खलीफा गुजरे हैं। उनको ये शरफ हासिल हुआ कि उनकी हुकूमत में कुस्तुनतुनिया यानी आज का इस्तांबुल फतह हुआ। उनसे पहले कई हुक्मरानों ने कोशिश की कि कुस्तुनतुनिया फतह हो जाए, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी खुशखबरी पहले ही सहाबा को दे दी थी। उन्होंने फरमाया, कुस्तुनतुनिया ज़रूर फतह होगा, उसका अमीर क्या ही अच्छा होगा और वो फौज क्या ही अच्छी होगी। फिर तारीख ने 29 मई 1953 ईस्वी
वो दिन भी दर्ज हो गया जिसमें सुल्तान मोहम्मद फातिह ने पूरी शान और वकार के साथ सल्तनत उस्मानी का परचम कुस्तुनतुनिया के किले पर लहराया, और आज तक वो किला और शहर मुसलमानों के कब्जे में है। अल्हम्दुलिल्लाह। सुल्तान मोहम्मद फातिह बड़े आलिम, बहादुर, अदल और इंसाफ करने वाले मुतक्की जाहिद थे। शायद ही लोगों को पता हो कि जब उन्होंने कुस्तुनतुनिया को फतह किया तो उनकी उम्र महज 23 साल की थी। जैसा तारीख दर्ज है, जब सुल्तान फातिह की मौत का वक्त करीब आन पहुंचा तो उन्होंने अपने साहबजादे को बुलाया और उसे कुछ वसीयतें और नसीहतें कि कैसे एक सुल्तान, हाकिम और खलीफा अपने बेटे को वसीयत करता है। बेटे, मैं मौत के किनारे पर खड़ा हूँ, किसी वक्त भी मेरी मौत आ सकती है, मगर मुझे मरने का अफसोस नहीं, इसलिए कि मैं अपने बाद तुम्हारे जैसी लायक औलाद छोड़कर जा रहा हूँ। अपनी कौम के साथ अदलो इंसाफ और रहमो करम का बर्ताव करना, बगैर किसी तमीज़ और फ़र्क के रियाया के साथ एक जैसा सलूक करना और दीन इस्लाम को फैलाने में उसकी तबलीग तरवीज़ में पूरी कोशिश करना, क्योंकि ये हम हुक्मरानों पर अल्लाह की तरफ से फ़र्ज़ है। दीन को हर काम पर तरजीह देना और मुकद्दम रखना, और ऐसे लोगों को अपना मुलाजिम न रखना जो दीन को अहम नहीं समझते, कबीरा गुनाहों से नहीं बचते और फहाशी और अय्याशी को पसंद करते हैं। बिद्दात और खुराफत से दूर रहना और ऐसे लोगों से दूर रहना जो इन कामों को पसंद करते हैं और उनको वो खुद अमली जामा पहनाते हैं। अपने मुल्क में जिहाद के परचम को कभी न झुकने देना, बैतुल माल की हिफाजत करना, उसमें से फिजूल खर्ची न करना, और हाँ खबरदार, कभी भूल कर भी अपनी आवाम के मालो दौलत की तरफ न देखना, अलबत्ता शरीयत इसकी इजाज़त दे। ज़रूरतमंद और मुहताजों की रोज़ी का बंदोबस्त करना, हकदारों पर खर्च करना और उनकी इज्जत और एहतराम करना। आज का ये सफरनामा उस शख्स के बारे में है जो पैदा तो सरदार बूटा सिंह हुआ, लेकिन जब इस दुनिया से रुखसत हुआ तो वो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी था। सन 1857 की जंगे आज़ादी में आखिरकार हिंदुस्तानियों को शिकस्त का सामना करना पड़ा, और इसके बाद पूरा ब्रिटिश साम्राज्य पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर हुक्मरान बन गया। इन्हीं हालात और वाक़यात के तहत मुसलमानों में दो मूवमेंट्स ने जन्म लिया। पहली मूवमेंट सर सैयद अहमद खान अपने साथियों के साथ अलीगढ़ में मुसलमानों के लिए तालीमी निज़ाम के लिए काम कर रहे थे, और अंग्रेज़ों की पावर और हाकमियत को तस्लीम करके आगे बढ़ने का फैसला लिया गया। जबकि मुसलमानों की दूसरी मूवमेंट दारुल उलूम देवबंद के बानी मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी और उनके साथी थे, जिन्होंने अंग्रेज़ी साम्राज्य के खिलाफ जिहाद की रविश अख्तियार कर रखी थी और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के दिलों में आज़ादी की शमा रोशन कर रखी थी। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी इस मूवमेंट के वो जोशीले और सरगर्म वॉलंटियर थे जिन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के अपनी लंबी उम्र का बड़ा हिस्सा देवबंद की उठाई। इस मूवमेंट के तहत अंग्रेजों के खिलाफ मुसलसल और अनथक जिहादी कोशिशों में सर्फ किया। रफ्ता रफ्ता मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने हालात ऐसे होने लगे कि पॉलिटिकल फ्रंट को ही सही जाना, और इस तरह उन्होंने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के एक सियासी किरदार को बखूबी अदा किया। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के हालात जिंदगी अजब है। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी 1872 में सियालकोट के एक गांव चियामवाली के सरदार राम सिंह के यहाँ पैदा हुए, जो अपने बेटे के 4 महीने पहले इंतकाल कर चुके थे। उनकी माँ का नाम प्रेम कौर था। सरदार राम सिंह खत्री धर्म से हिंदू थे, जबकि शादी उन्होंने एक सिख खानदान में की थी। बाद में वो खुद भी सिख हो गए थे। माँ ने उनका नाम सरदार बूटा सिंह रखा। जब मौलाना उबैदुल्ला सिंधी 2 साल के हुए तो उनके दादा भी चल बसे। उसके बाद उनकी माँ उन्हें लेकर डेरा गाजी खान के जामपुर में लेकर आ गई। वहीं पर 1878 में उनकी बुनियादी तालीम का आगाज हुआ। सन 1884 में जब सरदार बूटा सिंह 12 साल के थे तो उन्होंने मौलाना उबैदुल्ला मलेर कोटली की किताब तोहफतुल हिंद पढ़ने को मिली। उस किताब को पढ़ने के बाद उनका जहन इलाहिये नूर से जगमगा उठा। इसको पढ़ने के बाद वो इस्लाम की तरफ खींचे चले आए और वो मुसलमान हो गए। तोहफतुल हिंद के लिखने वाले उबैदुल्ला मलेर कोटली के नाम पर अपना नाम उबैदुल्ला रख लिया। जब उबैदुल्ला सिंघी 16 साल के हुए तो सैयदुल आरफीन हाफिज मोहम्मद सिद्दीक की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने कलमा पढ़ाया और दीन इस्लाम से सरफराज किया।
शेख ने उन्हें अपना दीनी बेटा बना लिया और 2 महीने अपने पास रखा। उसके बाद उन्होंने अपने लाडले शागिर्द अबुल सिराज मोहम्मद को दीनपुर भेजा। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के उस्तादों में मौलाना अब्दुल कादिर, मौलाना खुदा बख्श, मौलाना मोहम्मद अहसन कानपुरी, मौलाना मोहम्मद कासिम नानौतवी, मौलाना हाफिज अहमद और शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन और मौलाना रशीद अहमद गंगोही जैसे सैयद और मुस्तनद उलेमाए दीन शामिल थे। शेखुल हिंद और मौलाना रशीद अहमद गंगोही ने कहा था, अगर इस नौजवान को सही उलेमा और किताबें मिली तो ये दूसरा शाह अब्दुल अजीज होगा। इसके बाद शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन से दर्स और तदरीस का इजाजत नामा लेकर अमरोठी चले गए। वहां लगातार 6 साल तक पढ़ाते रहे और कई किताबें भी पढ़ी और अपने पब्लिकेशन का एक इदारा भी शुरू किया। सन 1897 में मौलाना महमूदुल हसन ने सियासी काम का हुक्म दिया। अब हिंदुस्तान में उनकी पहचान एक माहिर सियासतदान, मुस्लिम फलसफी, मुसन्निफ और एक बेहतरीन टीचर की हैसियत हासिल हो चुकी थी। 1909 में मौलाना उबैदुल्ला देवबंद आ गए और जामियतुल अंसार कायम की। ये जामियतुल अंसार उलेमाओं और फजीलों की तालीम और तरबियत पर काम करती थी और पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के फ्रीडम मूवमेंट की फिक्र को फैलाने का काम करने के लिए कायम की गई। 1913 में अपने कुरान की तफसीर और शाह वलीउल्लाह देहलवी के और उनके खानदान के इल्मी काम को समझाने और पढ़ाने के लिए दिल्ली में नज़ारतुल मारफुल कुरानिया नाम का एक अलग इदारा कायम किया, जिसके सरपरस्त हकीम अजमल खान और नवाब वकारुल मुल्क थे। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ चुकी थी, तब देवबंद के आला दिमाग के उलेमाओं ने एक खुफिया मंसूबे की बुनियाद रखी। ये मंसूबा मुल्क तो अंग्रेजों से आज़ाद करवाने के लिए अपने कारकुनों और वॉलंटियर्स को पैगाम पहुंचाने के लिए रेशमी रुमाल इस्तेमाल किए जाते। ये खुफिया पैगाम इन्हीं रेशमी रुमालों पर लिखे होते और इस तरह अंग्रेज अफसर और ब्यूरोक्रेसी इन आज़ादी पसंद लोगों और उनके पैगामों से अनजान रहती। लेकिन अचानक मुल्तान के कमिश्नर के पास एक शख्स पेश हुआ जिसने बताया कि उसका बेटा अफगानिस्तान में है और अपने साथियों के साथ मौलाना उबैदुल्ला सिंधी की लीडरशिप में अंग्रेजों के खिलाफ सरगर्म है। इसी शख्स ने कुछ गहरे पीले रंग के रेशमी रुमाल अंग्रेज अफसर के सामने रखे, जिन पर हिंदुस्तान की आज़ादी के पैगाम लिखे हुए थे। ये पैगामात तुर्की और रूस के सेंट्रल एशिया के गवर्नरों के नाम लिखे गए थे। इन पैगामात में अंग्रेजों के खिलाफ रूस और तुर्की से मदद लेने और सिपाहियों की भर्ती इत्तलात मौजूद थी। सारी बात खुल चुकी थी। अंग्रेजों ने दारुल उलूम देवबंद को अपने निशाने पर ले लिया। शेखुल हिंद समेत बाकी उलेमा और वहां काम करने वाले पकड़े गए और माल्टा के आइलैंड में कैद कर दिए गए। इससे पहले ही मौलाना उबैदुल्ला सिंधी अपने लोगों को अलग अलग होने की हिदायत कर चुके थे। 1915 में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी काबुल जा पहुंचे और वो वहां 7 साल ठहरे। वहां उन्होंने जुनूदुल्ला रब्बातियां कायम की। अफगान भी अंग्रेजों से कामयाबी के साथ उनसे जद्दोजहद कर चुके थे। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने अफगानों को अपने साथ मिलाकर और दोनों ने साथ मिलकर अंग्रेजों से हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक शुरू कर दी और काबुल में हिंदुस्तान की हुकूमत में एक उबूरी हुकूमत कायम की। जब मौलाना छुपकर कलकत्ता पहुंचे तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनसे मिलने के लिए पहुंचे और इनके कामों और कोशिशों की बहुत तारीफ की। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ही ने सुभाष चंद्र बोस को बताया कि हमारे अफगान भाई हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए हर तरह से हमारा साथ देने को तैयार हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को अपना फॉरेन सेक्रेटरी बनाया। सन 1922 में कांग्रेस कमेटी काबुल बनाई, जिसमें आपको प्रेसिडेंट बनाया गया और इस कमेटी को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने एक जलसे में इनवाइट भी किया। 1922 में ही मौलाना उबैदुल्ला रूस के रास्ते तुर्की रवाना हुए। 7 महीने मास्को में रहने के बाद तुर्की के शहर अंकारा में रहे, जहां 4 महीने रहने के दौरान तुर्की के रहनुमा इस्मत पाशा, रऊफ बेग, शेख अब्दुल अजीज जावेश से भी उनकी मुलाकात हुई। फिर 3 साल इस्तांबुल में रहने के दौरान वहां यूरोपियन सोसाइटी और कल्चर को पढ़ा और देखकर उसका तजुर्बा भी हासिल किया और फिर 1924 में आज़ाद हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का एक खाका जारी किया। इसके बाद आप इटली होते हुए स्विट्जरलैंड चले गए और 1926 में ही मक्का पहुंच गए।
इस दौरान इंडियन नेशनल कांग्रेस, जमीयत उलेमा इस्लाम हिंद और ओनल इंडिया मुस्लिम लीग और बाकी दीगर जमातों ने मौलाना उबैदुल्ला सिंधी की वतन वापसी की कोशिशें शुरू कर दी। आखिरकार अंग्रेज हुकूमत उनकी वतन वापसी पर रजामंद हो गई और वह सन 1939 में कराची की बंदरगाह पर उतरे, जहां पर सिंध के गवर्नर A.B. सूमरो ने कई रहनुमाओं के साथ उनका इस्तकबाल किया। फिर हिंदुस्तान के कई शहरों में घूमकर तकरीरें की। इन सारी तकरीरों और भाषणों में मुसलमानों को हिंदुओं के साथ मिलकर इस आज़ादी की जद्दोजहद के लिए आमादा किया और फिर हिंदुओं के साथ मिलकर महाभारत स्वराज पार्टी बनाई और फिर जमुना नर्मदा सिंध सागर पार्टी की बुनियाद रखी। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने इमामुल हिंद शाह वलीउल्लाह देहलवी के नजरिए और फलसफे के प्रचार के लिए दिल्ली, लाहौर, कराची, पीर झंडापुर में दारुल हिकमत खोले। आप नौजवानों की तालीम और तरबियत पर खास तवज्जो देते। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी एक इनकलाबी शख्स थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, जिनमें इल्हाम उल रहमान तफसीरुल कुरान, ज़ाती डायरी, खुतबात मकालात, शुरू आगाही, फ़िक्र वलीलुल्लाह का तारीखी तसलसल कुरानी, शुरे इनकिलाब, कुरान पाक का मुताला कैसे करें, मजमुआ तफसीर इमाम सिंधी, शाह वलीउल्लाह और उनकी सियासी तहरीक और तफसीर मकामुल महमूद शामिल है। सन 2013 में भारत सरकार की तरफ से रेशमी रुमाल की तहरीक पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी 1367 हिजरी और सन 1944 22 अगस्त में 72 साल 5 महीने और 1 दिन इस दुनिया में गुजार कर अपने परवरदिगार के हुजूर में पेश हो गए। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी कहा करते थे, जब मुसलमान अपने असली निजाम पर आएगा, वो कैपिटलिस्ट के सरमायादारी के बुत को तोड़ने वाला निजाम होगा और इस दुनिया के भूख, नंग, मुफलिसी और सूदी निजाम को खत्म कर देगा और दुनिया में इसके अलावा और कोई निजाम नहीं जिसे तोड़ने की जरूरत है। मौलाना कहा करते थे, जिस फैसले में मेरी राय को दखल नहीं, वो फैसला मेरे लिए जिल्लत आमेज है। वो बात जो मुझे कायल किए हुए मुझसे मनवाई जाए, वो मेरी जात की तौहीन है और इससे मुराद उसकी राय मानना है, क्योंकि इंसान की राय ही उसकी जात का इजहार होता है। इंसान का सबसे पहला हक है कि उसके वजूद को तस्लीम किया जाए। फातिमा बिन्त हुसैन शहीद ए करबला सैयदना हुसैन बिन अली की साहबजादी थीं और इस्लामी इतिहास में उनका मुकाम निहायत मुअज़्ज़ज़ है। उन्हें फातिमा सुगरा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी वालिदा का नाम उम्म इशाक बिन्त तलहा बिन उबैदुल्लाह था और फातिमा का निकाह उनके चचा अज़ाद भाई हसन बिन अली से हुआ। उनके 4 बच्चे थे, अब्दुल्लाह, इब्राहिम, हसन और ज़ैनब। जब उनके शौहर हसन बिन हसन का इंतकाल हुआ तो फातिमा की जिंदगी एक नए रास्ते पर मुड़ गई। उन्होंने बाद में अब्दुल्लाह बिन उमर बिन उस्मान बिन अफ़फ़ान, तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के पोते से निकाह किया। उनसे 2 बेटे हुए, मोहम्मद दीबाज जो अपनी खूबसूरती के 22 दीबाज कहलाए और कासिम। लेकिन कुछ ही अरसे बाद जब अब्दुल्लाह बिन उमर का भी इंतकाल हुआ तो फातिमा ने बेवागी की जिंदगी गुजारने का फैसला किया। यह खत अब्दुल रहमान बिन जुहाक मदीना के हाकिम की तरफ से आया है। वह आपका हाथ मांगते हैं। अब्दुल रहमान बिन जुहाक मदीना के हाकिम ने फातिमा से निकाह की पेशकश की, लेकिन उन्होंने मजबूती से इसे रद्द कर दिया। उन्हें यह पैगाम दे दो कि मैंने अपना फैसला कर लिया है। मैं अपनी बाकी जिंदगी अपने बच्चों की परवरिश में गुजारना चाहती हूँ। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। अब्दुल रहमान ने अपनी जिद और इसरार से कई बार उन्हें राजी करने की कोशिश की, लेकिन फातिमा ने अपना फैसला नहीं बदला। तुम इस इनकार पर पछताओगी। इसके बाद अब्दुल रहमान धमकियों पर उतर आया। फातिमा ने बेखौफ होकर यह मामला खलीफा यजीद बिन अब्दुल मलिक के पास पहुंचाया और अब्दुल रहमान के खिलाफ शिकायत की। यह नाकाबिले बर्दाश्त है। अब्दुल रहमान को इसकी सजा मिलनी चाहिए। खलीफा यजीद
अब्दुल रहमान के रवैये से नाराज होकर उसे उसके ओहदे से माजूल कर देते हैं और सख्त सजा देते हैं। फातिमा बिन्त हुसैन सिर्फ एक मां और बेवा नहीं थी, बल्कि एक अजीम आलिमा भी थी। हदीस और फिक्ह में उनका गहरा इल्म था। उनका अल्लाह के साथ ताल्लुक निहायत मजबूत था। सन 100 हिजरी में फातिमा बिन्त हुसैन का इंतकाल हुआ और उन्होंने एक ऐसी मिरास छोड़ दी जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने बेमिसाल बहादुरी, इल्म और अज़्म के साथ अपनी जिंदगी गुजारी। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु की एक बीवी जमीला थी। उनका नाम पहले आसिया था, जिसके मानी नाफरमान औरत के होते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तरीका था, बल्कि यूं कहा जाए कि दस्तूर मुबारक था कि उनके पास अगर कोई ऐसे नाम वाला कोई आदमी या औरत आते या लाए जाते जिसके नाम के मायने अच्छे नहीं होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बदल दिया करते थे। इसी तरह आपने आसिया का नाम बदलकर जमीला रख दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु के बेटे आसिम उन्हीं से जन्मे थे। आसिम अभी छोटे ही थे कि किसी वजह से हजरत उमर ने जमीला को तलाक दे दी। ये हजरत अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु का दौर एक खिलाफत का जमाना था। हजरत उमर पहले कुबा में रहते थे, जो मदीना के कुछ ही फासले पर मौजूद है। बाद में मदीना आ गए थे। एक दिन इत्तेफाक से कुबा तरफ से गुजर हुआ। कुछ बच्चे खेलते खेलते हजरत उमर की सवारी के सामने आ गए। हजरत उमर ने अचानक सवारी की लगाम खींच ली ताकि बच्चों को चोट वगैरह न लग जाए या कोई बच्चा सवारी के नीचे न आ जाए। हजरत उमर ने जब बच्चों को गौर से देखा तो उन बच्चों में उनका बेटा आसिम भी था, जो उन बच्चों के साथ खेल रहे थे। अब बेटे को देखते ही हजरत उमर की शफकत और मोहब्बत गालिब आ गई। बेटे को सीने से लगा लिया और पकड़कर घोड़े पर बैठा लिया और साथ ले जाना चाहा। उधर जमीला को भी किसी ने बता दिया कि उमर इब्ने खत्ताब आसिम को अपने साथ लिए जा रहे हैं। वो भागती हुई आई और घोड़े की लगाम पकड़ ली और हजरत उमर से कहने लगी, आसिम मेरा लख्त ए जिगर, मैं उसे अपने साथ रखूंगी, आप उसे नहीं ले जा सकते। मगर हजरत उमर आसिम को छोड़ने को तैयार नहीं थे। वो आसिम को साथ ले जाना चाहते थे। अब दोनों मियां बीवी में इख्तिलाफी बातें शुरू हो गई। झगड़े ने तूल पकड़ा। मुकद्दमा अमीरुल मोमिनीन हजरत अब्बू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा। दोनों ने अपने अपने हक में दलीलें पेश की। अमीरुल मोमिनीन ने मुकद्दमे की समाअत बड़े गौर से की और आखिर में फैसला सादिर फरमाया कि आसिम अपनी मां जमीला के पास रहेगा। हजरत उमर ने अपने खिलाफ फैसला सुना और फिर खलीफातुल रसूल के फैसले को कबूल कर लिया और इस मुकदमे के फैसले पर कोई उंगली नहीं उठाई और आसिम को उसकी मां के हवाले कर दिया। खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान बड़ा मशहूर खलीफा गुजरा है। वो खुद भी एक बड़ा आलिम था, इतना बड़ा आलिम कि अगर वह हज्जाज बिन यूसुफ जैसे जालिम की सरपरस्ती न करता तो मुसलमान उसको अपना इमाम और बड़ा बुजुर्ग मानते। आलिम होने के साथ वो निहायत समझदार भी था और इंसानों और उनकी सलाहियातों की भी पहचान रखता था। एक बार खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान ने एक आलिम इमाम शाबी को रोम के शहंशाह जस्टिनियन के पास अपना सफीर बनाकर भेजा। वो सफीर नुमा आलिम जब जस्टिनियन के दरबार में पहुंचे तो शहंशाह रोम की इस आलिम से काफी देर तक बातचीत हुई। शहंशाह ने उनसे तरह तरह के सवाल किए, ऐसी ऐसी बातें पूछी कि कोई दूसरा जवाब न दे सके, लेकिन इस आलिम ने बड़ी आसानी के साथ तमाम सवालों के जवाब दे दिए। रूमी शहंशाह उनके जवाब सुनकर दंग रह गया। जस्टिनियन ने पूछा, क्या तुम शाही घराने से ताल्लुक रखते हो? नहीं, मैं तो जैसे आम मुसलमान हूँ वैसा ही एक आम आदमी हूँ। जस्टिनियन इस आलिम की शख्सियत से बड़ा मुतासिर और हैरान हुआ। फिर उस रूमी शहंशाह ने इमाम शाबी को पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हें अपना खास सलाहकार बना दूंगा और तुम्हारी इज्जत और एहतराम तुम्हारे खलीफा से ज्यादा करूंगा। लेकिन इमाम शाबी ने बड़े अदब से रूमी शहंशाह को मना कर दिया। फिर शहंशाह ने एक खत लिखवाया और चमड़े के एक खूबसूरत बस्ते में रखकर बस्ता सील कर दिया और आलिम से कहा,
ये खत अपने खलीफा को दे देना। इमाम शाबी ने वापस आकर वो चमड़े का बस्ता जिसमें खत रखा हुआ था खलीफा अब्दुल मलिक को दिया। अब्दुल मलिक ने जब खत खोलकर पढ़ा और मुकम्मल खत पढ़ने के बाद इमाम शाबी से पूछा, क्या तुम्हारी शहंशाह से कोई बातचीत हुई थी? इमाम शाबी ने सारा किस्सा खलीफा अब्दुल मलिक को सुना दिया। अब्दुल मलिक कुछ सोचने लगा और कुछ देर बाद इमाम शाबी से कहा, जरा ये खत आप भी पढ़िए। जब उन्होंने खत पढ़ा तो खत में लिखा था, बड़े ताज्जुब की बात है कि जिस कौम में ऐसा शख्स मौजूद हो और वो कौम उसे छोड़कर किसी और को अपना बादशाह बना ले। आलिम साहब ने ये पढ़ा तो दिल में खटका लगा कि कहीं खलीफा अब्दुल मलिक उन्हें कत्ल न करा दे। इमाम शाबी ने अब्दुल मलिक से कहा, ए खलीफा, अगर रूमी शहंशाह आपको देख लेता तो इस तरह न लिखता, और अगर मैंने ये खत पढ़ लिया होता तो आपको न देता। दरअसल उसने मुझको इशारा किया है कि मैं आपको कत्ल कर दूं, ताकि ऐसा न हो कि आगे चलकर मेरी आवाम आपको चाहने लगे और फिर बागी होकर आपको खलीफा बना ले। रोम के शहंशाह के दरबारी और सफीर जो खलीफा के दरबार में मौजूद थे, सारी तफसील जस्टिनियन को लिख कर भेज दी। उसने कहा, हाँ, मेरा इशारा यही था। इन हुक्मरानों, बादशाहों और शहंशाहों का एक खास मिजाज होता है, जो चीज हासिल ना हो सके उसे खत्म और बर्बाद कर दिया जाए। क्या आप जानते हैं कि ये आलिम साहब इमाम शाबी कौन थे? ये बुजुर्ग एक मशहूर ताबई हजरत आमिर बिन शुरहबील शाबी थे, जो इमाम शाबी के नाम से मशहूर हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के निहायत नेक और लाडले शागिर्द थे। उन्होंने 500 सहाबा से दीन का इल्म सीखा, हदीसें सुनी और दीन की एक एक बात समझी। इल्म सीखने के लिए दूर दूर का सफर किया। जहां सुनते कि फलां सहाबी रहते हैं, फौरन वहां पहुंच जाते। उस वक्त के सबसे बड़े हदीस के इमाम हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाहु अन्हु के पास तकरीबन 1 साल रहे और उनसे इल्म सीखा। वो बड़े ही मेहनती और बात के सच्चे इंसान थे। उन पर अल्लाह की मेहरबानी ये थी कि अल्लाह ने उनको बड़ी अच्छी समझ अता की थी और उनके बात करने का सलीका बड़ा दिलकश था। वो हर बात इतनी साफ और सुलझी हुई करते कि सुनने वाला अच्छी तरह समझ लेता और उनकी समझदारी और काबिलियत पर हैरान रह जाता। इसी वजह से खलीफा अब्दुल मालिक उन्हें मानता था। हज्जाज बिन यूसुफ जालिम हुक्मरान था, लेकिन वो भी हजरत आमिर बिन शुरहबील शाबी की समझदारी का कायल था और उनकी इज्जत करता था। खलीफा अब्दुल मलिक को जब किसी दूसरे बादशाह से कोई मामला सुलझाना होता तो वो इमाम शाबी को भेजा करता था और आप वहां से मामला ठीक करके वापस आते। यही वो इमाम शाबी हैं जिनकी नसीहत सुनकर इमाम अबू हनीफा तालीम की तरफ तवज्जो की और फिर फिकाह के बहुत बड़े आलिम हुए। अल्लाह की रहमत हो उन पर और अल्लाह हमें भी ऐसी ही समझ दे। अबुल फराश अब्दुल रहमान इब्न अल जौजी रहीमुल्लाह, जो बगदाद के एक मशहूर और मारूफ मुअर्रिख, काजी, मुहद्दिस, कुरान के मुफस्सिर और आलिम हैं। इसलिए उन्हें शेख उल इस्लाम कहा जाता है और इस्लामी तारीख में उन्हें इब्न अल जौजी नाम से पहचान मिली। इब्न अल जौजी का सबसे बेहतरीन वाकया जो बयान किया जाता है कि बगदाद में एक बार अहले सुन्नत और शिया के दरमियान हजरत अबू बकर और हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु की फजीलत को लेकर बहस छिड़ गई। सुन्नी हजरात हजरत अबू बकर को अफजल मानकर बहस कर रहे थे और शिया हजरत अली को लेकर। बहस में तेजी आने लगी और अब बहस शदीद रूख अख्तियार करने लगी। लोगों को अंदेशा होने लगा, खुदा न खवास्ता ये बहस कोई और ही न मोड़ लेते। तो शहर के कुछ दानिश्वरों और समझदार लोगों ने मशवरा दिया, अल्लाह के बंदों, इसका फैसला आम लोग न करें तो बेहतर है। अपने अपने उलेमाओं और पढ़ने वालों अहले इल्म से राब्ता करें, या बेहतर है कि खुद पढ़ें और तहकीक करें। अवाम तो अवाम है, वो पढ़ने के बजाय किसी जल्दी और फौरी हल को तलाशती है और ये तहकीक का काम भी उनके लिए कोई और करे और जल्दी करे और फैसला भी उनकी पसंद का हो। उसकी मर्जी के खिलाफ फैसला ज्यादातर अवाम कबूल नहीं करती। खैर, लोग अपने अपने अहले दानिश और समझदार लोगों के पास गए। जब उन समझदार लोगों को ये बात पता चली कि मामला इतना संगीन हो चुका है और लोग भी फौरी हल चाहते हैं,
उन समझदार लोगों ने आपस में ये फैसला किया कि अगर गलती से इस मामले में ऊंच नीच हो गई तो बगदाद का अमन खराब हो सकता है। हर शख्स फैसला करने और लेने से घबरा रहा था कि किसी ने मशवरा दिया। ये मामला शेख अबुल फराश इब्ने जौजी हल कर सकते हैं, क्योंकि वो जितना अहले सुन्नत में मकबूल और मारूफ है, उतने ही शियों में भी उनकी सच्चाई, क़यामतदारी, हक गोई और फैसले सबको काबिल कबूल होते हैं। लिहाजा सबका इस पर इत्तेफाक हो गया। पूरे बगदाद में ये खबर फैल चुकी थी, लिहाजा लोगों की भीड़ इब्ने जौजी के दफ्तर के सामने इकट्ठी होने लगी। जब मामला शेख इब्ने जौजी के सामने पेश किया गया तो उन्होंने कहा, क्या मेरा जवाब सबको काबिल कबूल होगा? तो सबने आपके जवाब पर रजामंदी का इजहार किया। फिर सुन्नी शिया के रहनुमाओं को बुलाया गया और शेख इब्ने जौजी ने पूछा, क्या मुतालबा है आप लोगों का? दोनों गिरोहों के रहनुमाओं ने कहा, हुजूर, ये बताइए कि अबू बकर और अली में कौन अफजल है? शेख उल इस्लाम इब्ने जौजी अपनी मजलिस वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे। कुछ देर सोचा, फिर बोले, इन दोनों में से अफजल वो है जिसकी बेटी आपकी बीवी है। और उसी वक्त कुर्सी से उतर आए, यानी फैसला हो चुका। अहले सुन्नत में खुशी की लहर दौड़ गई। वो कहने लगे, हजरत अबू बकर है, क्योंकि आपकी बेटी हजरत आयशा है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, और कुरान में अल्लाह ने नबी की बीवियों को तमाम मुसलमानों की माँ कहा है, और हजरत आयशा को उम्मत की माँ का दर्जा हासिल है। और शिया भी खुशी से निढाल हो रहे थे। वो कहने लगे, वो हजरत अली हैं, क्योंकि रसूल खुदा की बेटी हजरत फातिमा अज जहरा हैं, जो मौला अली की शरीक ए हयात हैं, और नबी का फरमान है कि वो जन्नती औरतों की सरदार हैं।